Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. We are doing PYQs on chemical kinetics and radioactivity. Let's see question number 16. Which of the following statement for order is not correct? उसमें पहला ऑप्शन है order can be determined experimentally. Order of reaction is equal to sum of the powers of concentration terms and differential law. It is not affected with coefficient of the reactants. Order cannot be fractional. तो order fractional हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. आंसर हो जाएगा इसका D. ठीक है. See question number 17. Ag plus ammonia gives AgNH3 plus and AgNH3 plus ammonia gives AgNH3 plus. दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, K1 K2 को मल्टीप्लाई करोगे, नेट क्या आ जाएगा, which is Ag plus 2 ammonia gives AgNH3 whole twice plus. Is it clear? So what should be the answer? 6.8 into 1.6 into 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power minus 3. सॉल्व करोगे, आंसर आएगा आपका कौन सा पार्ट? B पार्ट 1.08 into 10 power minus 5. सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों. अच्छा, इसमें से आप कमेंट करिए कि AgNH3 whole twice plus इसको एक रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है with OH ions. What is the name of that reagent? Please type in comment box. चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. Consider a reaction Ag plus BH gives product when reaction concentration of both G and H is doubled. Okay? And H को फिक्स रखा गया, एक बार G को डबल किया गया तो डबल हो पाए, राइट? अगर हम G और H को डबल करते हैं तो रेट इंक्रीज करता है 8 टाइम्स, राइट? बट अगर आप G को डबल करते हो, H को कांस्टेंट रखते हो तो रेट सिर्फ डबल होता है. इसका मतलब G के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर है 1 और H के करस्पॉन्डिंग 2. सो नेट ऑर्डर क्या हो जाएगी? नेट ऑर्डर हो जाएगी 1 + 2. देखो, कभी भी अगर आप डबल कर रहे हो और डबल हो रहा है तो 1, डबल कर रहे हो 4 टाइम्स हो रहा है तो 2, डबल कर रहे हो 8 टाइम्स हो रहा है तो 3, डबल कर रहे हो हाफ हो रहा है तो -1 और डबल कर रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है तो 0. इजी. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. A positron is emitted from 11 Na23. The ratio of atomic mass of atomic number resulting nuclide is what? इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसका आंसर अगर 23 11 Na से शुरू करोगे 23 10x 1 beta 0, आंसर आएगा C. सीधा सीधा क्वेश्चन और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. Question number 20. Under the same reaction conditions, initial concentration of same substance becomes half in 40 second and 20 second through first order and zero order kinetics. फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होती है ln2/k, आपको पता है. सेकेंड ऑर्डर के लिए भी आपको पता है, और दोनों के लिए हाफ होने की जो ड्यूरेशन है 40 और 20 सेकेंड गिवन है. तो आपको फॉर्मूले लगाने होंगे. वन इज C0/2k, अदर इज ln2/k. दोनों का रेशियो, बट रिमेंबर K1 एंड K0 है वैल्यूज. सो ln2/K1 इज सम नंबर, C0/2K0 इज अदर नंबर, U1 K1/K0. कर लोगे मैथ से, इजी. Okay, now see this question number 21. For a first order reaction, A gives P. Log K is something plus 6. K equals A power minus A upon RT. Log K is log A minus A upon RT. Compare करो, log A हो जाएगा 6 तो A हो जाएगा 10 power 6. यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा ऑप्शन नंबर D. सीधा सीधा क्वेश्चन है, कर पाएंगे ऑप्शन नंबर D. A मैच करते ही 10 power 6 आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर D में, और साथ साथ आपको E upon 2.303 R आपको यूज करना होगा. उसकी वैल्यू 2000 करोगे तो आंसर आएगा 38.3. Question number 22 on your screen. Plots showing the variation of rate constant K with temperature are given below. So formula क्या होता है? K equals E power minus E upon RT. यानी as temperature increases, E power minus जो वैल्यू 1 upon X है माइनस के साथ, वो वाला ग्राफ है. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लॉजिकली फिट होता है इस पूरे एक्सप्रेशन में? See, if you draw decreasing graph, that is wrong because that's for E power minus T. यहाँ पे हमारे पास 1 upon T है. So the correct answer is option number A. ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. Bombardment of aluminium by alpha particle leads to artificial disintegration in two ways. तो पहले वे में 13L27 से आप पहुंच रहे हो 14Si30 X पे. दूसरे वे में 15P30Y और बाद में 14Si30 Z पे. तो पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड क्या है. देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको यहाँ पे बैलेंसिंग आनी चाहिए रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की. कैसे बैलेंस होती है? एटॉमिक नंबर्स बैलेंस कर लो, मास नंबर बैलेंस कर लो. सो 2730 वहाँ पे गैप कितने का दिख रहा है आपको बच्चों? 3 का गैप दिख रहा है और 13 से 14 हो रही वैल्यू, तो दोनों में डिफरेंस निकाल पाओगे, राइट? सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, बिकॉज पहले में 1H1, दूसरे केस में जो वाई निकल के आ रहा है साथ में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0N1 एंड देन पॉजिट्रॉन 1 बीटा 0. सो आपको सारी इक्वेशन बैलेंस करके अपने आप आंसर निकल के आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. इन द रिएक्शन P plus Q gives R plus S, the time taken for 75% of reaction of P is twice the time taken of 50% of reaction. The constant Q varies
with the reaction as shown the overall order पूछी गई आपसे J Advanced 2013 का क्वेश्चन। देखो T3/4 यानी कि T 75% is double of T half for first order। ओके इन्होंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं P के रेस्पेक्ट में। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q वेरीज विद टाइम शो ऑन द फिगर, दैट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो एक फर्स्ट ऑर्डर है दूसरी जीरो ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 + 0 is 1। आंसर मैं मार्क करूंगा 1। I hope you understood all these questions. Thank you so much for watching these videos. See you in the next video.